हरे कृष्णा, राधे श्याम। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्रणाम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद आशा करती हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी ठाकुर जी की कृपा से एकदम ठीक हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ अंशु बिष्ट, उत्तराखंड के जनपद चमोली के एक छोटे से गांव मुंदोली से। तो दोस्तों, मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मेरा पूरा काम घर का हो गया है। अब मैं जा रही हूँ अब खेत के लिए, और ब्लॉगिंग को आगे बढ़ाते हुए दिखाते हैं आज का मौसम। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. से हूँ मैं, यहाँ पे घास के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों मामी भांजी लगते हैं। ये मेरी भांजी है। हाँ। मैं इनकी मामी हूँ। हाँ। तो ये मेरे यहाँ से दूध ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी भांजी ने मेरे लिए घास काटा था, तो मैं ये घास को लेने आई हूँ। तो यहाँ तो फिर हमने कहा चलो एक ब्लॉग बना लेते हैं। और काफी दिनों से मेरे ब्लॉग में नहीं आए थे मामी लोग। हाँ, आजकल क्योंकि ये काम का टाइम है, तो आजकल मिल भी नहीं पाए। तो अभी मैं घास लेने आई, तब मिल गए। चलो हमने कहा, सोचा कि चलो एक ब्लॉग बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक ब्लॉग बना रहे हैं। और आजकल बहुत काम लगा है, तो समय भी नहीं मिलता है। अभी बहुत दिनों से मुलाकात हुई। सुबह मैं इधर उधर चली जाती हूँ, फिर मेरी भांजी वहाँ दूध लेने आती है बाद में। तो तब तक तो मैं इधर उधर चली जाती हूँ, फिर उस मिल भी नहीं पाते हैं ठीक से। तो चलो हमने कहा अभी एक ब्लॉग बना लेंगे। तो सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। तो हम आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहेंगे, तो मेरी भांजी का ब्लॉग को
जल्दी से हमारा ब्लॉग मोनेटाइज कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद आप लोगों के लिए। हरे कृष्णा। तो मामी का कितनी अच्छी भारी लगी हुई है, पीछे मुड़ो, ये देखो कितनी सीध भारी लगा रखी है। हाँ तो मामी जाओ फिर, हैं बाय, कल मिलेंगे। हरे कृष्णा, बाय। यहीं पे है मामी लोगों का मकान, दिख रहा होगा, ये जो सेंटेक्स दिख रहा है ये हरा रंग का, तो यहीं पे मामी लोगों ने जाना है। और ऊपर है सीता देवी है, यहाँ पे घास कर रही है। और ये आजकल उसने घास काट रखा है, ये नेपालियों ने काटा था उनका घास, तो अभी वो दोनों जने घास ले जा रहे हैं। अंधेरा हो गया है दोस्तों और मैं घर पे आ गई हूँ, तो देख सकते हैं अभी कैसा लग रहा है हमारा गांव का नज़ारा। हरे कृष्णा दोस्तों, तो मेरी पूजा शुरू हो चुकी है, अभी हो रहे हैं 6:30। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। तो आजकल है कार्तिक मास, जैसे कि आपको पता है, तो जो भक्ति मार्ग में रहते हैं ना, और जो ना भी रहते हो, जिनको कार्तिक माह में जो दीपदान सेवा होती है ना उसका थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो ना, तो उसके बहुत अधिक फायदे हो सकते हैं। तो कार्तिक मास में हम करते हैं, ये देख रहे होंगे आप, ये है घी का दीपक। तो हम डेली एक नया दीपक लेते हैं और उसमें बाती लगा के उसमें घी का दिया जलाते हैं, ताकि हम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकें। तो मैं इसके आपको कुछ फायदे और कुछ महत्व बताना चाहूँगी शॉर्टकट में और कभी विस्तार से बताऊँगी। आजकल थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों, जैसे ना मान्यता है कि ना इस दिन जब जैसे कोई दीपदान से कभी समाप्त ना होने वाले जैसे पुण्य मिलते हैं हमको, और सभी प्रकार के पापों का अंत होता है। और जैसे अग्नि पुराण में ना इस बारे में विस्तार से बताया गया है, जो आप अपने गूगल में सर्च करके या किसी ज्ञानी से आप पूछ सकते हैं। तो हम कार्तिक माह में डेली दीपदान करते हैं घी का दिया जलाकर, और फिर भगवान के 4 बार उनके चरणों में घुमा के, फिर 2 बार उनके उधर पेट में दिया को घुमा के, फिर 3 बार उनके मुखमंडल में घुमा के 3 बार घी का दिया, और 7 बार पूरा उनके आरती उतार कर तब हम उस दिया को बाहर रख देते हैं। तो मैंने कर रखा है यहाँ पे दिया तैयार। तो ये कार्तिक मास ना बहुत पुण्यकारी है और फायदेमंद भी है, तो आप चाहे तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे तो गूगल में सर्च कर सकते हैं और किसी ज्ञानी पुरुष से आप संत से आप पूछ सकते हैं कि कार्तिक माह की क्या महिमा है और दीपदान की। तो कार्तिक में जैसे भगवान केशव के सामने दीपदान करने से सभी तीर्थ में स्नान करने के समान फल मिलता है। और जो व्यक्ति कार्तिक माह में न भगवान कृष्ण को घी का दीपक अर्पित करता है, इसे संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। ये जन्म मरण का जो है झंझट ही खत्म हो जाता है। जो निस्वार्थ भाव से दीपदान की जो है पूरी प्रक्रिया अच्छे से करे, तो वह साक्षात आध्यात्मिक क्षेत्र को प्राप्त करता है जहाँ कोई दुख नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र मतलब भक्ति में, तो भक्ति में कोई दुख नहीं होता है, सुख ही सुख होता है, सुख क्या परमानंद होता है। तो ब्रह्मा विराट पुराण के मुताबिक जो कार्तिक में श्री हरि को घी का दीपक देता है, वह दीपक जितने पल जलता है उतने सालों तक हरि नाम में आनंद भोगता है। तो दीपदान से जुड़ी हुई कुछ शर्तें जैसे होती हैं ना, दीपदान को हिंदू धर्म में बहुत खास माना जाता है। दीपदान करने से ना पहले तन और मन से पवित्र होना चाहिए। दीपदान करने के लिए मिट्टी के दिए या शुद्ध घी तेल डालना चाहिए, और दीपक को किसी पत्ते या आसन पर रखना चाहिए। और मैंने बाहर एक पीतल की छोटी सी प्लेट है, तो मैंने उसमें रखती हूँ मैं।
तो अगर दीपदान नदी में करना हो तो उसे पत्ते के बने दोनों में रखकर प्रवाहित करना चाहिए। दीपदान प्रभु के सामने निवेदन प्रकट करने का एक तरीका है। तो ऐसे हम दीपदान करते हैं। ये कुछ थोड़ा मुख्य बातें बताई मैंने। तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, और मैं पूजा कर लेती हूँ पहले अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पे रख दिया है मैंने दीपक जला के। तो ये घी का दीपक है, इसको मैंने पीतल की प्लेट में रख रखा है आसन, और ये अलग ही रहता है। और मैं यहाँ पे तुलसी महारानी की पूजा करूँगी। तो ये हमारी तुलसी महारानी, तो मैं यहाँ पे तुलसी की पूजा करूँगी। हरे कृष्णा। तो दोस्तों मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि कार्तिक मास में जो दीपदान का क्या महत्व होता है, थोड़ा बहुत बताया मैंने शॉर्टकट में। तो आप सर्च भी कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे महत्व हैं। और तो मैं आपके नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कभी। तो आजकल थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम है, और सर भी मैंने बांध रखा है। सर भी बहुत तेज़ से ही दुख रहा है मेरा। तो मैं बनाती हूँ खाना, और ठाकुर जी की सेवा करके फिर उनको आराम से सुला के हम भी जल्दी से खाना करके फिर सो जाते हैं टाइम से। फिर सुबह टाइम से भी उठना होता है, क्योंकि आजकल कार्तिक का महीना है। तो 2-4 दिन तो टाइम से उठ के जल्दी जल्दी काम निपटा के खेत भी जाना होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमारी वीडियो पूरी देखें। और जो नए चैनल में हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में हरे कृष्णा जाते जाते ज़रूर लिखिएगा। और आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी उसका तहे दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।